Hello friends, in last lecture we discussed about the solution and its types, solubility of solid in liquid with their affecting factors as well as the solubility of gases in liquid also with their affecting factors including Henry law with its application and limitations. So friends, today we will discuss about the vapor pressure of liquid solution and Raoult's law. Okay, already discussed solution of solid with gas, but now we discuss about the liquid with solid and liquid with liquid. We take only binary solutions. You know what is the binary? Binary means only two components in the solution takes place. One is the solute and second is the solvent. Okay, so binary solution here takes place. Okay. Here we discuss about the vapor pressure of these solutions. So first of all we discuss what is the vapor pressure and then discuss the vapor pressure of solution in which both the solute and the solvent are volatile. Means वो solution जिनके अंदर solute and solvent दोनों liquid state में होते हैं और दोनों के दोनों volatile होते हैं. And secondly we take the vapor pressure of solutions in which solute is non-volatile. In which solute is non-volatile, means in this solution solvent is solid or the non-volatile but solvent is liquid, means here we take liquid with solid. Okay, so first of all what is the vapor pressure? What is the vapor pressure? Vapor pressure. So friends, as name is clear, what is the vapor pressure? Vapor means pressure exerted by the vapors of any component or the liquid. Okay friends, मैंने पहले ही क्लियर किया है कि वेपर्स और गैस के अंदर क्या डिफरेंस है. देखिए फ्रेंड्स, रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर कोई कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में होता है तब उसको हम गैसियस फॉर्म ही बोलते हैं, मीन्स गैस बोलते हैं. बट अगर कोई कंपोनेंट रूम टेम्परेचर के ऊपर तो लिक्विड होता है, बट जब हम उसको थोड़ा हाई टेम्परेचर रखते हैं तब वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है, तब उस गैसियस फॉर्म को वेपर्स बोलते हैं उस कंपोनेंट के. ओके, खैर हम यहाँ पे बात करते हैं वेपर प्रेशर की. मीन्स वेपर्स exerted a pressure on the walls of a vessel that is called as the pressure of that is vapor pressure. So what is the definition of vapor pressure? Okay friends, देखिए the pressure exerted by the vapors. सिंपल है, the pressure exerted by the vapors. The pressure exerted by the vapors above the liquid surface, above the liquid surface. देखिए क्या बोला है, प्रेशर एक्सर्टेड वेपर above the liquid surface. Okay friends, above the liquid surface in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid. इक्विलिब्रियम किसके साथ है? लिक्विड के साथ. एक कंडीशन और हम लगाते हैं यहाँ पे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट solution. Is called as vapor pressure of that solution. देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन हमें क्या कहती है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, कि वो प्रेशर जो वेपर्स वॉल्स के ऊपर या वेसल्स की वॉल्स के ऊपर लगाता है. ओके, यानी कि कोई भी प्रेशर चाहे वो कहीं पे भी लग रहा है, चाहे वो
वेसल्स के ऊपर लग रहा है, चाहे वो आउटर सरफेस के ऊपर लग रहा है किसी के ऊपर। सो हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउट द लिक्विड सरफेस। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये आपके पास एक वेसल है, यहाँ पे लिक्विड है और ये इसके वेपर्स है और ये मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो वेपर्स है ये अपवर्ड फोर्स में लगाएंगे और वो वेसल फील्ड है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द वेपर प्रेशर, दिस इज द वेपर प्रेशर। और ये कहाँ पे होता है? ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के जो सरफेस है उससे लिक्विड ऊपर होता है। लिक्विड के अंदर कभी नहीं हम बात करते वेपर फेस की, ओके, ये गैसियस फॉर्म की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर की, जो कि लिक्विड सरफेस के बिल्कुल ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने यही बोला है वेपर्स अबाउट द लिक्विड सरफेस, इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। देखिए, अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की, वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट की, कि कोई भी टेम्परेचर है हम उसको बॉइलिंग पॉइंट में बोल सकते हैं, क्योंकि वेपर्स या बॉयल होना कोई भी लिक्विड है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है और लास्ट तक पकता रहता है। मीन्स काफ़ी एक जो टेम्परेचर रेंज है काफ़ी लंबी होती है। बट फ्रेंड्स, हम एक फिक्स पॉइंट को ही वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और वो पॉइंट कौन सा होता है? वो टेम्परेचर पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म वेपर्स एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ओके, इनके टेम्परेचर पॉइंट एट विच लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट टेम्परेचर पॉइंट इज कॉल्ड एज द वेपर और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपोनेंट और द लिक्विड। ओके फ्रेंड्स, सो वहाँ पे हम क्या बात करते हैं? इक्विलिब्रियम की। सो ये इक्विलिब्रियम वहीं से आया है। देखिए, वेपर्स अबाउट द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, यानी कि यहाँ पे क्या है? प्योर वो टेम्परेचर पॉइंट आ जाता है, दैट इज दी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। वो टेम्परेचर पॉइंट आ जाता है जिसपे इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, मींस वेपर्स एंड द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके, विद लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट के मैक्सिमम जितने वेपर्स बन सकते हैं वो बन चुके हैं, और उन वेपर्स के थ्रू जो भी प्रेशर बनना है, ओके, मैक्सिमम प्रेशर वो बन चुका है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्लियर है? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या आता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। देखिए, आप क्या समझते हैं यहाँ पे फैक्टर्स? सो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड और द वोलेटाइल कंपोनेंट। नेचर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट। अगर फ्रेंड्स मैं वोलेटाइल कंपोनेंट की बात करूँ, यानी कि वो कंपोनेंट जिसके वेपर्स बनते हैं और जिसकी वजह से वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द वोलेटाइल कंपोनेंट। ओके फ्रेंड्स, तो नेचर से हम लोग क्या समझते हैं? यानी कि यहाँ पे हम सीधा सीधा देखते हैं कि वेपर प्रेशर कब होता है? जब कंपोनेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग होते हैं और वो वेपर्स फॉर्म में आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो फोर्स लगाते हैं दैट इज द वेपर प्रेशर। सो यहाँ पे वेपर कब बनते हैं? प्रेशर तब होगा जब वेपर बनेगा, और वेपर कब बनेगा? जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से फ्री स्टेट में आएंगे, मीन्स उनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो हो जाएगी, मीन्स जो बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग वो टूट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे सीधा सीधा नेचर से मतलब है इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। ओके,
अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहा हूँ कंपोनेंट्स की, तो वो जितनी वीक होंगी, ओके, उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में फ्री होंगे और उतने ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। अब जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ, वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर इज ग्रेटर देन इथाइल एल्कोहल। मैंने कौन सा एग्जांपल दिया है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर is greater than vapor pressure of इससे इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। देखिए अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, कम है एज कम्पेयर टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, वेपर्स कम बनेंगे, और वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे वेपर प्रेशर सीधा सीधा लिंक करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, या फिर मैं कह सकता हूँ नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट फैक्टर affecting of the vapor pressure, that is the nature of the volatile component. Okay, and second factor दिख ही रहा है, that is the temperature. Second factor is temperature. अब फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे किसी सॉल्यूशन को उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ओके, मीन्स जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे, जितनी ज़्यादा हम हीट एनर्जी देंगे, उतने ही काइनेटिक एनर्जी आएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, या फिर हम कहें वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे देखें तो क्या होगा, बॉन्डिंग टूटेगी, जिसकी वजह से वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर हम वेपर्स की बात करें, वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हीट देने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, सो हम इसको, आपने अगर पढ़ा हो कैल्सियस कैलिब्रन एक इक्वेशन आती है आपके पास, अगर उसके बिहाव पे हम देखें तो log P2 by P1, ये मैं कैल्सियस कैलिब्रन इक्वेशन बता दूँ आपको। डेल H वेपराइजेशन, डेल H वेपराइजेशन बाई 2.303 R, ओके, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 by T1 T2. This is the Clausius-Caligran equation, जो कि हमें दिखाती है टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, T2 वेपराइजेशन कांस्टेंट वैल्यू, गैस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर T1 and T2, and pressure P1 P2. P2 is the pressure on temperature T2 and P1 is the pressure at temperature T1. Okay friends, so this Clausius-Caligran equation that will explains us relationship between the temperature and the pressure. Okay friends, now vapor pressure of liquid solutions, that is for volatile solute. Okay, another way we say Royle's law for volatile solute. Royle's law for volatile solute. यहाँ पे हमने क्या बात करनी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन।
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं यहाँ पे? बोथ components are volatile, both components are volatile, और इसको हम किससे एक्सप्लेन करेंगे? डेफिनेटली राउल्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम होगी से CBSE या हरियाणा बोर्ड दोनों में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके पास राउल्स लॉ के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, सो राउल्स लॉ क्या कहता है आपको? पार्शियल प्रेशर एग्जिस्ट बिकॉज बोथ कंपोनेंट्स गिव्स दिस वेपर प्रेशर। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज आती है, पहले भी आया था आपके पास। ओके, +1 की एक इक्वेशन थी, अगर आपको कुछ याद हो तो। सो खैर ज़्यादा बातें उसके बारे में नहीं करेंगे, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए दो हमारे पास कंपोनेंट है, लिक्विड बोथ आर वोलेटाइल। सो जब दो टाइप की गैसेस या दो कंपोनेंट इकट्ठे एक ही जगह पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तब हम वहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या बात होगी? पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल इन स्टेट। ओके, तो पार्शियल प्रेशर विल एग्जिस्ट हियर। ओके, बिकॉज बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल इन नेचर। ओके फ्रेंड्स, तो राउल्स लॉ में हम यहाँ पे क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर की बात करें। ओके, सो अब हम बात करते हैं राउल्स लॉ। Raoult's. So according to this law, in a solution, the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to, क्या कहता है? According to this law, vapor pressure. According to this law, vapor pressure of a component at a given temperature is equal to according to this law, vapor pressure of a component at a given temperature is equal to vapor pressure of that component in pure state. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बोलो। देखिए यहाँ तक क्या मतलब है? वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। with multiply of mole fraction of that component in solution। देखिए
देखिए क्या लाइन आए हुए, प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ मल्टीप्लाई ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। एक तो हम उसका प्योर का वेपर प्रेशर ले रहे हैं और साथ में उसके मल्टीप्लाई में क्या ले रहे हैं कि वो जो कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वेपर फेज के दौरान उसका मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन के अंदर, मीन्स वो कितना मौजूद है उस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, या फिर हम बात करें कि हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी। ओके, हमारे पास दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर ए एंड बी। अगर मैं वेपर प्रेशर ए की बात करता हूँ कि ए कंपोनेंट की वजह से कितना वेपर प्रेशर है, तो फ्रेंड्स उस ए का वेपर प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ। तो रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनता है उसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट मल्टीप्लाई विद द इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ओके, सो कैलकुलेट करके देखिए। क्या बोला मैंने, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ओके, इन दोनों की वजह से हमारे पास वेपर प्रेशर आता है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने ए का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ ने क्या किया हमारे पास कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू pressure of A in its pure state multiplied by mole fraction of A in solution. P naught A, that is the vapor pressure of A in its pure state. Means जब A अकेला होता है तब उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, ओके, that is the P naught A. और X is the mole fraction, यानी कि A component present in the solution, कितना A है सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर ऑफ बी, दैट इज द पी नॉट बी टू एक्स। सो दिस इज ऑफ योर राउस। ओके, विद दिस वी कैलकुलेट द pressure of different components in the वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। सो दोबारा फिर आता है हमारे पास यहाँ पे डाल्टन्स लॉ। मैंने पहले भी हमें बताया था 2 मिनट पहले, पार्शियल प्रेशर की जहाँ पे बात करती है वहाँ पे प्लस वन का ही यूज होता है, दैट इज द डाल्टन लॉ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यूजिंग दिस लॉ बात करूं तो टोटल प्रेशर हमारे पास क्या है, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं पी क्या है, टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे किसकी वजह से वो दोनों ए और बी की वजह से, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी, दैट इज प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की, तो हमें पता है कि हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, कि हमेशा मोल फ्रैक्शन का जो टोटल है वो 1 आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, यहाँ से कैलकुलेट कर दिया मैंने। ओके, मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी। तो कर ले क्या होगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी
प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, मल्टीप्लाई करूँगा दोनों से, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, कॉमन फैक्टर यहाँ से मैं इनको निकाल दूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स बी। ओके, सो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, लिखता हूँ पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, कॉमन निकाल दिया एक्स बी। ओके, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, क्या बचता है, प्लस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए, दैट इज इक्वल टू P as means total partial pressure or the solution of the pressure. Okay friends, so P naught B minus P naught A, P naught B minus P naught A gives the value of total pressure with XA and XB. मीन्स हमारे पास अगर मैं पी एक्स टोटल की बात करूं तो हमारे पास पी नोट ए, पी नोट बी एंड एक्स ए एक्स बी। ओके, यानी कि ये टोटल हमें क्या देती है, पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, ओके, ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी। ओके फ्रेंड्स, खैर एक चीज और यहाँ पे है, इक्वेशन इज लीनियर। जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन इज लीनियर, जैसे इक्वेशन है वो लीनियर रहेगी बिकॉज ड्यू टू ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी मैंने बताया था अभी इज इक्वल टू 1, मीन्स हमने क्या प्रूव किया, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है, इक्वेशन इज लीनियर, इक्वेशन इज लीनियर। ओके, और अगर मैं इस इक्वेशन को विड्रॉ करता हूँ, ओके, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ ग्राफिकली, ड्रॉ करता हूँ, तो हमारे पास एक सिंपल सा लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। ओके, so friends, here x is equal to 1, x b is equal to 0, but here x a is equal to 0, x b is equal to 0। यानी कि अगर मैं इधर बात करता हूँ, यहाँ पे इस साइड जो मोल फ्रैक्शन a का है वो मैक्सिमम है और b 0 है, यहाँ पे कंपोनेंट सिंगल है। ओके, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम इधर से इधर, तो एक्स ए यानी कि ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कम होता है, डिक्रीज होता है, बट जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो इंक्रीज होता है। ओके, और लास्ट में क्या होता है, ए कंपोनेंट 0 हो जाता है और बी कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाता है। ओके, और इधर बात करें हम, दैट इज द वेपर प्रेशर, दैट इज द वेपर प्रेशर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिख करता हूँ, दिस इज दी पी नॉट ए, यानी कि जब ए कंपोनेंट अकेला था, सिंगल था, तब इसका प्योर हो गया ना, प्योर का वेपर प्रेशर पी नॉट ए है। लेकिन जब अकेला बी कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी कि बी की जो प्योर फॉर्म है उसका वेपर प्रेशर सपोज ये पॉइंट है। ओके, दिस इज दी पी नॉट बी। ओके, सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होगा। सो ग्राफ इज
ओके। बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ तो बी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स ग्राफ इज दिस। ओके, सो ये अगर मैं इनकी बात करूँ, लाइन 1 एंड लाइन 2, ये प्योर है, मीन्स जब हमारे पास सिंगल कंपोनेंट होते हैं। और अगर मैं इनकी इक्वेशन लिखूँ तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ए एच ए। उसी तरह से प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नोट बी एच, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन दैट इज रिजल्ट और द equal to vapor pressure of A in its pure form with the multiple of mole fraction of A component in the solution. Similarly here, what is the partial pressure or the pressure of B component in the solution, that is equal to the vapor pressure of B in its pure state with the multiple of mole fraction of component B in the solution. ओके फ्रेंड्स, और अगर मैं यहीं पे टोटल प्रेशर की बात करता हूँ, टोटल प्रेशर मीन्स सॉल्यूशन का, ओके, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ए और बी कंपोनेंट का टोटल प्रेशर, सो दिस वन। ओके, दोनों की वजह से तो आता है, तो यानी कि ये जो थर्ड लाइन है दैट गिव्स दी टोटल पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी। ओके ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे इक्वेशन वो भी लिख सकते हैं जो हमने बनाई थी अभी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए, क्या बनाई थी हमने, पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स एक्स ए, ओके, सॉरी एक्स बी प्लस पी नोट, ये भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोल्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स की बात करता हूँ जो कि रोल्स के जो रोल्स टॉपिक है हमारे पास, रोल्स लॉ है, उसके रिगार्डिंग है। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉइंट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रोल्स लॉ। ओके, सबसे पहले मैं रोल्स लॉ के जो एप्लीकेशन है उसके पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, यहाँ पे वी टेक बाइनरी सॉल्यूशन in which both the components are volatile, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन है, both the components are volatile, तभी तो हमने पार्शियल प्रेशर की बात की है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। और सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, इन वेपर फेज बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, इन वेपर फेज बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। क्या है, इन वेपर फेज बोथ द components are present। देखिए यहाँ पे क्या बात की है इसने, जब हमारे पास दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, इट मींस दोनों के वेपर्स बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बात करता है, वेपर फेज के अंदर दोनों के दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, बोथ दी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन वेपर फेज। ओके, अगर इनके अंदर कोई सॉल्यूट यानी कि कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होता तो उसके वेपर तो बनने ही नहीं थे, तो वहाँ पे हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट की बात करते हैं वेपर फेज में,
यानी कि वहाँ पे सॉल्यूशन में तो दोनों फेज होते हैं, सॉरी दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, बट वेपर्स के अंदर एक ही होता है। बट यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया है, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो दोनों के वेपर्स बनेंगे। तो इसी करके दोनों के दोनों ही जो हमारे पास कंपोनेंट है वो सॉल्यूशन के साथ साथ हमारे वेपर्स फेज में भी प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो हमारे पास आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल कंडीशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर। सो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द रोल्स लॉ। ओके, उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मीन्स कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। ओके, मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमने किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है वेपर प्रेशर से, ओके, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर में अगर हमने कैलकुलेट करना है तो मीन्स अगर हमने यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, दैट विल कैलकुलेटेड फ्रॉम पार्शियल प्रेशर। कंपोनेंट इज कंपोजिशन ऑफ composition of component in vapor phase can be calculated by partial pressure, और ये बिल्कुल इजी है हमारे पास, क्योंकि जब हम मोल फ्रैक्शन से प्रेशर को निकाल सकते हैं तो हमारे लिए ये भी इजी है कि हम किसी भी कंपोनेंट का कंपोजिशन इजीली पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होगा, सपोज हमने एक्स ए मीन्स ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमारे पास क्या फार्मूलेशन होगी, पी ए बाई पी ए प्लस पी ए बाई पी ए प्लस पी ए। मीन्स अगर हमने कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमने ए का प्रेशर डिवाइड बाई पी ए पी बी, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी टोटल। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, और बी का निकालना है और एच बी इक्वल टू पी बी डिवाइड बाई पी टोटल और पी ए प्लस बी। ओके, सो यहाँ से हम जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स ए एंड बी का वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर से। ओके फ्रेंड्स, सो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट इज ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन विच solute is non-volatile, means solution we take in which one component is solid and another component is solvent, that is liquid. Okay friends, so today our topic that is the vapor pressure, and in vapor pressure we take Raoult's law for the volatile components, means solution we take that is the both the components are volatile, that is the liquid and liquid. Okay friends, so thank you.